Hello officers, welcome to UPSC Revise. In this video, I am going to give you a framework that will act as a bedrock for your UPSC CSE preparation. What I have seen with every struggling candidate is that they don't have the right approach or they don't have a framework, a dedicated structure जिस basis पे वो अपनी जो strategy है वो formulate कर पाएं. Let's understand this with an example कि government को एक policy implement करनी है. बट बिफोर डिजाइनिंग दिस पॉलिसीज और बिफोर इम्प्लीमेंटिंग इट, हर एक मिनिस्ट्री गवर्नमेंट के अंदर एक फ्रेमवर्क को डिजाइन करती है, एक स्ट्रक्चर को डिजाइन करती है जिसके बेसिस पे ये पॉलिसी उनकी जो है वो डिजाइन होती है, उसके बाद वो इम्प्लीमेंट होती है. सो दिस इज द केस विद द एवरी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री. दैट्स हाउ दे डू इट एंड दैट्स हाउ वी हैव टू डू दिस. सो आवर गोल इज टू clear UPSC CSE 2026 and we have roughly around 11 months because I have started from July, so we have around 11 months in hand and we have to design a framework. And in this video I will give you a approach, a basic standard approach जो कि हर कोई इसके बारे में बात नहीं करता है, but it is very crucial when it comes to exam like UPSC. The sheer amount of competition and the depth of understanding जो एग्जाम ये डिमांड करता है. And I promise you in this video I will instill this approach in your veins, in your blood, so that it will help you to rethink. But this framework अगर आपने एक बार इसको सेट कर लिया, this will help you throughout your journey. So before getting into it, is it doable? For example, are 11 months or let's say 12 months, are they enough to clear the toughest examination in India? The answer to this question is yes as well as no. I'll explain you this in a bit. Firstly, I have divided the candidate into two groups, the first attendees and the repeaters. It can be your second, third, fourth, even it could be your fifth or sixth attempt. So the first attendees I have divided into two groups. One who have some basic knowledge of GS syllabus and the other one जिसको कोई knowledge नहीं है. They are either from medical background or they are from non-medical engineering or any scientific background. So उनको journal studies के बारे में कुछ नहीं पता है. They are the freshers here and they don't know anything about the subject. They don't even know the syllabus. They don't know what are the different stages of the examination. Basically, they are fresh. So my honest and brutal reply to you guys is 11 months are not enough. The answer here is no. These 11 months are not enough to clear this examination. Again, the sheer amount of competition and the depth the UPSC is demanding from their selected candidates, 11 months are not enough. But for those who have some amount of GS understanding, 1 साल 2 साल कॉलेज के बाद उन्होंने कुछ अपना GS को इस एग्जाम को दिया है, you are in a very right position to clear this examination. And the one who have given this examination previously, एक बार attempt कर चुके हैं, they know the pressure, examination hall में जाके बैठे हैं, सारा कुछ किया है. For you it's a big yes. This is the time and you are at a right place. With this approach, I promise you, if you follow it with hand on your heart, you will be in a position to clear this examination. So basically, how to achieve this? So this is a standard, basically I can say a standard operating procedure जो basically preparation बनाने से पहले हर एक institute आपको बताएगा कि divide your journey into different phases. My honest opinion is don't divide into more than 2 phases. These 2 phases are enough. Go with the pattern of the examination. First we have a prelim stage, then we have the main stage, then we have the interview stage. So we have 3 stages of the examination. You also divide your whole journey into 3 phases. Here I have divided into 2 phases because interview is something we'll talk about once you have written mains. So basically दो इसमें divide कर दिया. You have July to December, roughly 6 months, and you have Jan to May. Here roughly you have 5 months. Divide into 2 phases and further divide these phases into different blocks, which is known as a block approach. I'm pretty sure आपने इसके बारे में अभी तक नहीं ये सुना होगा और इसी वीडियो में मैं इसके आगे ये डिस्कस करूंगा what is a block approach. तो बेसिकली आप क्या करते हैं, आप यू डिवाइड योर फेजेस इनटू डिफरेंट ब्लॉक्स एंड ब्लॉक अप्रोच में आप इस एक पर्टिकुलर ब्लॉक को फॉलो करते हैं
अपने आपका जो टाइम टेबल बनेगा, आपका जो स्ट्रैटेजी बनेगी, आगे की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, वो इन ब्लॉक्स के बेसिस पे बनेगी. सो दिस इज हाउ यू डू इट. सो दिस इज प्योरली मेंस ओरिएंटेड. आपका पूरा फोकस मेंस के लिए रहेगा. यहाँ पे यू विल बी डूइंग प्रीलिम्स प्लस रिवीजन फॉर मेंस. For 2 to 3 months you will do revision for mains, then you will shift to pure prelims oriented studies. Now let's address the elephant in this room, that is the CSAT. ये elephant था नहीं पहले, बेसिकली आफ्टर 2018 2019 का जो पेपर है उसके बाद का, लेट्स से बेसिकली मोस्टली 2020 के पेपर, 2020 के बाद के जो पेपर आए हैं, सीसेट इज समथिंग जो बहुत कैंडिडेट इसको इग्नोर करते हैं और इसी की वजह से उनका एग्जाम क्लियर नहीं होता. सो आई वुड सजेस्ट यू, अगर आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है सीसेट में, इवन मैंने ऐसे कैंडिडेट्स भी देखे हैं जिनका सीसेट में बैकग्राउंड होता है, उन्होंने मैथ्स पढ़ा होता है, बट स्टिल वो इस पोजीशन में होते हैं कि उनका सीसेट क्लियर नहीं होता. सो इसका बेसिक और ऑनेस्ट आंसर यही है, आप प्रिपरेशन करने बैठे हैं, सीसेट का एक पेपर उठाइए, प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, एक PYQ उठा के पूरा कर दीजिए. एंड प्लीज इसको विदाउट टाइमर नहीं करना है, बिकॉज यू कांट फील द एग्जाम प्रेशर. घर पे यू कांट सिमुलेट इट. सो बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड योर अंडरस्टैंडिंग कि आप किस लेवल पे हो, टाइमर लगा के एक PYQ सॉल्व कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि भाई सीसेट आपका क्लियर हो रहा है या नहीं. इफ यू आर इन ए पोजिशन आपका सीसेट क्लियर नहीं हो रहा है, इसको फर्स्ट फेज में डालिए. सीसेट, डोंट इग्नोर सीसेट, दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल. मेंस में आप, प्रीलिम्स में, GS में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर दोगे. इज इट ऑफ नो यूज अगर आपका सीसेट क्लियर नहीं है. अगर आपका सीसेट क्लियर हो रहा है, देन यू कैन place CSAT into a second phase, no issues altogether. Now moving on to the block approach. This is something जिसके साथ आई एम प्रीटी श्योर हम सबने बचपन में थोड़ा बहुत खेला होगा. वी हैव बिल्ड अ स्ट्रक्चर, अ बिल्डिंग, अ कार और एनीथिंग हमने इसके साथ बनाई होगी. सो इसी अप्रोच के साथ हमको अपनी जो UPSC की स्ट्रैटेजी है, जो फ्रेमवर्क है, जो स्ट्रक्चर है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, वो आपको इसी ब्लॉक से तैयार करनी है. So basically divide your GS, the syllabus of the UPSC, divide your syllabus into different block, GS1, GS2, 3, 4, essay, optional paper 1, optional paper 2, and let's divide further into current affairs, because current affair के लिए most of them थोड़ा अलग से हम तैयारी करते हैं with the help of newspaper, magazines and various crash courses. So we have, let's say, around 4, 5, 6, 7, 8. We have divided into 8 blocks. Okay, done. अभी आपको एक एक इस ब्लॉक पे फोकस करना है. You have to focus on this block और आपको ब्लॉक वाइज ही अपनी प्रिपरेशन को आगे फर्दर कैरी ऑन करना है. आपका जो टाइम टेबल रहेगा would be on the basis of this blocks. आपका जो PYQ एनालिसिस रहेगा strictly should be on this block. आपका जो एनालिसिस रहेगी that also should be strictly on the basis of this block. Now, why I am saying this? The reason behind this is the PYQs analysis and the syllabus provided by the UPSC. There is a reason कि why UPSC clubbed few subjects together. For example, in GS1, history is basically clubbed with geography, and further it is clubbed with society and social issues, if I am not wrong. So this is history, geography, society. So they have clubbed these 3-4 subjects together, and there is a reason behind it. If you want to understand history, आपको geography के aspects के बारे में पता होना चाहिए. The topography, the climate of that particular region, of that particular area, because उसकी तरीके से ही उनकी administration, उनकी economy would be driven. So to understand history better, or to write in history, for let's say for in mains, you have to understand the geography first. और geography को समझने के लिए you have to understand the history, the Holocene period, the Pleistocene period. You have to understand कि भाई किस तरीके से periods में our history is divided, so that आप geographical aspects को समझ सके, the changes in geographical landforms को आप अच्छे से समझ सकें. So you should have the idea of history. Then coming to society, the aspect of human geography in geography. आपको ह्यूमन ज्योग्राफी अगर आपको पता रहेगा, so you can easily implement it into understanding the aspect of society, and same goes like vice versa.
So this is the reason, this is how UPSC have divided their subjects or basically clubbed their subject together, and this is how you should prepare. Same goes for GS2. Polity we have here, we have IR, we have governance here. So one thing I have noticed, अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं ओनली फॉर मेंस पर्सपेक्टिव, अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी है पॉलिटी की और आपने मेंस के लिए कर लिया है, ट्रस्ट मी, आप अगर जब उसके आंसर्स लिखने के लिए आएंगे, यू वोंट बी इन ए पोजीशन टू गेट 2 मार्क्स और इवन 3 मार्क्स out of 10. You have to integrate the dimensions of IR, you have to integrate the dimensions of, especially the dimensions of governance in your answers to get at least half of the marks. And trust me, 5 marks out of 10 in GS mains is the जो टॉपर्स को मिलते हैं. दिस इज समथिंग जो टॉप करता है उसको like 50% ऑफ द मार्क्स दे आर एबल टू अचीव. और यहीं पे गेम होता है. 5 मार्क्स आपको इजीली मिल जाएंगे. इट इज 0.5 to +1 मार्क्स, जिसकी वजह से आपका रैंक लेट्स से 10 से सीधा शिफ्ट हो जाएगा 400 और इवन मूव हो जाएगा 500 के लिए. दिस इज दैट हाफ मार्क्स एंड 1 मार्क्स इन एवरी सब्जेक्ट इन एवरी GS पेपर, जो आपका रैंक जो है वो ड्रास्टिकली 100 से 200 गैप्स के अंदर आपका मार्क्स लेके जाएंगे. So this is something you have to understand. Divide your subjects into different blocks and on the basis of that block design your strategy and read all the subjects together. For example, history, geography. If you are starting with history, please the next subject should be geography. If you are starting with polity, the next subject should be IR or governance. Ethics is something जो आप पढ़ सकते हैं, but again for ethics also आपके पास प्री रिक्विजिट, अगर आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग चाहिए, जो आप बेसिकली गवर्नेंस में पढ़ते हैं, जो आपको अल्टीमेटली एथिक्स के अंदर हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड देयर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटर. सो दिस इज हाउ यू शुड गो. एंड फॉर द फर्स्ट अटेम्प्टी जो फर्स्ट टाइम अपना एग्जाम दे रहे हैं, दे हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका जब आप ब्लॉक अप्रोच फॉलो कर रहे हो, so this is how your block should look like. आपको GS1, GS2 you can go with it if you want to, if you have the basic resources you can go like this also, but as आप first time attend कर रहे हैं, you have to understand current affairs as well. newspaper आप read करेंगे, आपको उसकी understanding होनी चाहिए. So basically for that, for you guys, you can divide your blog into different categories. For example, the big four. First the big four, then you have SNT and environment, then you can divide into the leftover subject. For example, you have art and culture, then you have disaster management, further you have society and social issues, then you have ethics, and later you have essays. So why I'm telling you to cover your big four pehle, or especially in the first phase of your preparation. This should cover in phase 1 because you don't have any basic understanding. आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग अभी तक नहीं है, आपका फाउंडेशन क्लियर नहीं है, आपको पता नहीं है कि भाई सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं. बिग फोर इज बेसिकली योर पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी. एंड बाय हिस्ट्री आई मीन बोथ हिस्ट्री. हिस्ट्री डजंट मीन कि आप मॉडर्न पढ़ लिया, एंशिएंट पढ़ लिया, मेडिवल छोड़ दिया, मेडिवल एंशिएंट पढ़ लिया, मॉडर्न छोड़ दिया. यस, modern plays a very important role in prelims, but ancient and medieval plays equal role in mains as well and in interview as well. अगर आप ancient अच्छे से कवर करोगे, आपका art and culture वाला aspect अच्छे से आपको समझ में आएगा. So in a way, the whole syllabus of UPSC is intertwined or integrated together. They are not some separate syllabus. We should have a holistic understanding of all these syllabus. But this is how how the UPSC is divided their syllabus. So you can also divide your understanding and basic knowledge on the basis of the GS1, GS2, GS3 and GS4. So while answer writing as well, अगर मैं मेंस की बात करूं, while answer writing as well, why this block approach will helpful in your timetable, in your answer writing, in your PYQ analysis. This is the reason. GS1 में if you are solving a question, let's say of a history, and you want to touch different dimensions, because mains के अंदर you have दो एस्पेक्ट होते हैं, एक होता है डेप्थ, एक होता है डायमेंशन. सो आपको इन दोनों पे काम करना रहता है. आपको अच्छा कंटेंट पढ़ के करंट अफेयर अगर आप इंक्लूड करोगे तो आपको आपके क्वेश्चन की डेप्थ मिल जाएगी, बट आपको जो ये डायमेंशन है, ये डायमेंशन आपको कब मिलेगी, जब आप PYQ एनालिसिस करोगे.
और कैसे करोगे? जब आप इस ब्लॉक अप्रोच के हेल्प से करोगे। हिस्ट्री का क्वेश्चन लिखना है, यू नो हिस्ट्री, अगर कोई सोशल रिफॉर्म मूवमेंट से आपका हिस्ट्री में क्वेश्चन आया है, यू नो हिस्ट्री इज क्लब्ड विद ज्योग्राफी, हिस्ट्री इज क्लब्ड विद सोसाइटी, हिस्ट्री इज क्लब्ड विद वेरियस अदर सब्जेक्ट्स, so that makes the foundation of your dimensions. अगर हिस्ट्री में कोई इवेंट हो रहा है, दैट इज बिकॉज द ज्योग्राफी ऑफ दैट प्लेस इज लाइक दैट। अगर पानीपत की लड़ाई पानीपत में लड़ी, देयर इज अ ज्योग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग, देयर इज अ टोपोग्राफिकल रीजन एंड रिसोर्स रीजन की वाई सारी बैटल्स वहां पे ही हुई। द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वहीं पे ही क्यों हुई? देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट एंड दिस इज द रीजन बिहाइंड इट। तो दिस इज द डायमेंशन जो आपको इस ब्लॉक अप्रोच के थ्रू आपके दिमाग के अंदर थोड़ा रिवायर होगा और आपके दिमाग में अगर चमकेगा वाइल यू आर स्टडिंग और जब भी आप आंसर करोगे। एंड फर्दर इन नोट्स मेकिंग ऑल्सो, जब आप नोट्स बना रहे हो अपने, सो इफ यू पिक सब्जेक्ट वाइज, फॉर एग्जाम्पल GS1 GS2, सो आपके नोट्स भी इसी तरीके से रिवॉल्व करेंगे। एंड ट्रस्ट मी गाइज, अगर आप नोट्स भी इसी फॉर्मेट से बनाओगे जिस फॉर्मेट से यू हैव टू आंसर योर क्वेश्चन इन द मेंस एग्जामिनेशन, तभी आपके दिमाग में चमकेगा। आपके पास सिर्फ 7 मिनट रहेंगे फॉर 10 मार्क का क्वेश्चन, 11 मिनट रहेंगे फॉर 15 मार्क का क्वेश्चन। यू डोंट हैव टाइम कि वहां पे आप स्ट्रक्चर फॉर्मुलेट करोगे, स्ट्रक्चर अपना, और सोचोगे कि मुझे किस तरीके से इंट्रो लिखना है, बॉडी लिखनी है, कंक्लूजन लिखना है। आपके पास टाइम नहीं रहेगा। आपके पास ये डायमेंशंस, डेप्थ ऑलरेडी हर एक टॉपिक की आपके दिमाग में आपको चाहिए बिफोर एंटरिंग द एग्जामिनेशन हॉल। और सिर्फ 7 मिनट तो क्वेश्चन, 1 मिनट आपको क्वेश्चन पढ़ने में लगेगा, अंडरलाइन करने में लगेगा, कीवर्ड्स क्या पूछा है, रेस्ट 6 मिनट यू विल टेक टू राइट योर आंसर। रिमेंबर यू हैव टू फिल 2 पेजेस इन 10 मार्कर्स एंड 3 पेजेस इन 15 मार्कर क्वेश्चन। सेम गोज फॉर 11 मार्कर क्वेश्चन, लाइक 15 मार्कर क्वेश्चन एज वेल। 11 मिनट्स का आपके पास टाइम मिलेगा। वहां नहीं आपको बैठ के स्ट्रक्चर करना है कि इंट्रो में यू आर टेकिंग 5 मिनट्स और 5 मिनट तक आप सोच रहे हो कि भाई इंट्रो में ये लिखूंगा, बॉडी एंड कंक्लूजन में मैं ये लिखूंगा। This should be the part of your framework. That is why framework and structuring of everything is so important. Even for government also, किसी भी स्कीम बनाने के लिए they have to make a structure and a framework पहले, ताकि अगर फ्यूचर में कुछ डिफरेंट स्कीम्स आ रही हैं, डिफरेंट बजट एलोकेशन करना है, उसके लिए they can easily just manipulate their design and they are ready with it. वो अपना स्ट्रक्चर, अपना फ्रेमवर्क को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। आपको भी अपना स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क को डिस्टर्ब नहीं करना है। नाउ फॉर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, जो भी आप रिपीटर्स हैं, आपका अगर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ या जो भी आपका अटेम्प्ट चल रहा है, जो मैंने ब्लॉक अप्रोच आपको बताया है, बिकॉज आपने ऑलरेडी, यू गाइस हैव कवर्ड द बेसिक फाउंडेशन, जो आपके बिग 4 हैं और करंट अफेयर्स हैं लास्ट ईयर के, आई एम प्रीटी श्योर आपने पढ़े होंगे, जो भी आपने अटेम्प्ट दिया होगा, यू हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग। आपने हैबिट इनकलकेट करने की कोशिश की होगी, न्यूज़पेपर रीडिंग की, और इवन क्रैश कोर्स देखे होंगे काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट के रिलेटेड टू करंट अफेयर। सो आई थिंक दैट इज प्रीटी मच इनफ। यू हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग। द लैक्यूनास जो आपके अंदर है उस पे आपको सिर्फ फोकस करना है। यू डोंट हैव टू यू नो बेसिकली गो विद द सेम प्रोसेस अगेन एंड अगेन। सो आपके लिए बेस्ट यही रहेगा, स्टार्ट विद मेंस in your first phase 1, start with mains and focus on different GS subject. If you want my suggestion, start with essay अगर आपका GS हो चुका है पूरा, if not तो essay से start करने की जरूरत नहीं है। start with GS paper 4 that is ethics, जो है वो ज़्यादा बच्चे समझते नहीं है और GS1 GS2 GS3 पे ही पूरा फोकस करते हैं। रिमाइंड यू, GS के अंदर 100 से लेके 120 से ज़्यादा मार्क्स नहीं आज तक किसी को मिले। 115 120 वाज लाइक वन ऑफ द हाईएस्ट। अगर कोई एक्सेप्शन है सो प्रीटी मच आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, बट या दे कैन बी एक्सेप्शन, किसी एक का आ गया होगा, बट या दिस इज द एवरेज रेंज जिसके अराउंड आपको मार्क्स मिलते हैं। इवन 100 इज नॉट ऑल्सो इन द एवरेज रेंज। एवरेज रेंज इज बिटवीन 90 to 98 और 100। दिस इज द एवरेज जहाँ पे आपको GS1 GS2 के मार्क्स मिलते हैं। और ऑन द अदर हैंड अगर आप ऐसे देखोगे, जो बच्चे ने टॉप किया है और जो लाइक बेसिकली टॉप 100 रैंक्स में आया है, जो रैंकर है, उसके ऐसे में 115 से ज़्यादा मार्क्स होंगे। उसके ऑप्शनल में हर एक पेपर में 130 से ज़्यादा मार्क्स होंगे। एथिक्स के अंदर उसके 125 से ज़्यादा मार्क्स होंगे। तो दीज आर द सब्जेक्ट्स और दीज आर द पेपर्स जो एक्चुअली कैन मेक और ब्रेक योर सिलेक्शन इन अ UPSC। सो स्टार्ट विद एथिक्स। अगर आपका GS हो गया है देन स्टार्ट विद ऐसे, ज़्यादा नहीं, अंडरस्टैंड द बेसिक फ्रेमवर्क, अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर, टेम्पलेट्स आप बनाइए, थीम्स को आप अंडरस्टैंड कीजिए,
और इस बेसिस से आप अपना एसे पे फोकस कीजिए। मैं भी अपने तौर से आई विल ऑल्सो मेक अ वीडियो ऑन वेरियस सब्जेक्ट, हाउ टू टैकल ईच एंड एवरी सब्जेक्ट डिफरेंटली इन द कमिंग लेक्चर्स। एंड इन phase 2 will be your prelims focus from January। एंड अगर आप प्रीलिम्स जैन में रख रहे हो तो देन यू हैव टू मेक श्योर मोर देन और until basically 60% of your main syllabus should be completed till दिसंबर का ये नहीं कि दिसंबर 31st तक हो रहा है, बाई दिसंबर आई मीन द 1st of December, बिकॉज यू नीड 1 month और सो टू ट्रांजिशन फ्रॉम मेंस टू प्रीलिम्स। ये भी बहुत गलती करते हैं जो भी कैंडिडेट्स हैं हमारे, दे डोंट अंडरस्टैंड दिस ट्रांजिशन क्वाइट वेल, बिकॉज बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, आप मेंस ओरिएंटेड होते हैं, आप मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे होते हैं, उतने फैक्चुअल डेटा, उतना कीवर्ड्स आप कीवर्ड्स पे फोकस करते हैं, फैक्चुअल डेटा पे आप उतना फोकस नहीं करते हैं। सो यू नीड 1 month सो दैट आप ट्रांजिशन कर पाएं अपने शेड्यूल को, अपने स्टडी टाइम टेबल को, अपने लर्निंग कर्व को, अपने लर्निंग बिहेवियर को आप ट्रांसफर कर पाएं। सो दिस ट्रांजिशन पीरियड इज वेरी क्रूशियल। सो दिसंबर 1st तक यू हैव टू कंप्लीट ऑलमोस्ट 60% ऑफ योर सिलेबस, मेन सिलेबस। और उसके बाद के आफ्टर प्रीलिम्स जो हमको रफली अराउंड 90 डेज मिलते हैं, आजकल तो 90 डेज भी नहीं मिल रहे हैं, इट इज रफली अराउंड 80 डेज, 10 डेज यहाँ पे भी वी आर शॉर्ट। सो जो ये बाकी 80-90 डेज आपको मिलते हैं वो आपका 60% रिवीजन होगी और 40% जो बचा है वो आपका कवर होगा। So that is something. If you are in a position to cover, let's say 80% of your syllabus till December, then अगर आपका प्रीलिम्स अच्छे से गया है, आपका इंटरव्यू के लिए कॉल आ रहा है। Like this is not something कि जो like खुद से बोल रहा हूँ, there is a data जो इसको बैक करता है, there is a trend, जो ट्रेंड एनालिसिस से पता चला है कि दिस इज द सिनेरियो, दोस हु आर इन ए पोजीशन, एंड बाय कंप्लीटिंग का मेरा मतलब ये नहीं कि आपने सिर्फ एक बार पढ़ लिया उसको छोड़ दिया। बाय कंप्लीटिंग आई मीन यू हैव द कंटेंट, यू हैव अंडरस्टैंड द PYQ, यू हैव बेसिकली गिवन इनफ टाइम सॉल्विंग द क्वेश्चंस एंड यू हैव योर नोट्स रेडी। सो बाय कंप्लीशन आई मीन दिस, एंड 80% ऑफ ऑल द GS सब्जेक्ट्स। अगर आपका इतना हो चुका है, इफ यू आर इन दिस पोजीशन और आपका ये कंप्लीट हो चुका है, देन ट्रस्ट मी आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी, बशर्ते आप प्रीलिम्स में क्लियर कर रहे हैं। एंड प्रीलिम्स क्लियर करना इज नॉट दैट टफ। सबको ऐसा लगता है कि भाई प्रीलिम्स इज द टफेस्ट स्टेज, प्रीलिम्स इज द मोस्ट कॉम्पिटिटिव स्टेज, प्रीलिम्स इज नॉट द मोस्ट टफेस्ट स्टेज, मेंस इज द टफेस्ट स्टेज। इसको भी मैं एड्रेस करूंगा, ये भी बहुत बड़ा मिथ है यूपीएससी की प्रिपरेशन को लेके कि पहले ही स्टेज में, इतना खौफ है यूपीएससी को, इतना डरा देते हैं लोग हमें कि हम पहले ही स्टेज में विल फियर कि भाई नहीं भाई प्रीलिम्स ही नहीं हो रहा हमसे। सो रिमेंबर प्रीलिम इज नॉट द टफेस्ट, इट कैन बी द मोस्ट कॉम्पिटिटिव स्टेज, बिकॉज अराउंड आई डोंट लाइक कितने इन लैक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट एग्जाम देते हैं और कुछ थाउजेंड्स, 12 to 13,000 डिपेंडिंग ऑन द वैकेंसी दे गेट सेलेक्टेड। बिकॉज जो डेटा है ना आपका, वाई आई एम सो कंफ्यूज विद कि कितने लोग दे रहे हैं, ये जो 10 लाख बोल देते हैं, समथिंग 12 लाख बोल देते हैं, दिस डेटा इज डिसऑर्टर्ड, देयर इज नो बैकिंग फॉर दिस डेटा। सो इससे डरने की जरूरत नहीं है कि भाई 13 लाख में से सिर्फ 13,000 बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं। नो, आधे बच्चे तो फॉर्म ही भर रहे हैं, एग्जाम देने ही नहीं आ रहे हैं। और इवन जो फॉर्म भर रहे हैं, दैट डेटा इज कोचिंग इंस्टीट्यूट और रैंडम न्यूज़पेपर ये डेटा निकालते हैं, विच इज जस्ट टू गेन दी TRPs नियर द मंथ ऑफ मे। एक्चुअल डेटा जो पता चलता है वो हमको मेंस से पता चलता है। पर 13,000 बच्चों का मेंस हुआ है, 13,000 में से सिर्फ 800 से 900 बच्चों का फाइनल लिस्ट के अंदर नाम आने वाला है। दिस इज द डेटा यू शुड बी वरी अबाउट। और पूरा का पूरा कंपटीशन ही यहाँ पे लाई करता है, ना कि वहां पे जो 12 लाख बच्चे दे रहे हैं उसमें 13,000 सिलेक्ट हो रहे हैं। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट of this lecture or of this framework is the revision. So revision is something जो हम सब इग्नोर करते हैं, and this is something which is so crucial that आपकी पूरी प्रिपरेशन ही इस रिवीजन के अराउंड रिवॉल्व करती है। अगर आपने 10 पेज का कोई कंटेंट पढ़ा है, अगर आपने उसको रिवाइज ही नहीं किया है, देन वो आपका 10 घंटा इस कंटेंट को पढ़ने के लिए जो आपने टाइम लगाया है, दैट इज नथिंग, जस्ट वेस्ट ऑफ योर टाइम। लाइक आपने टाइम वेस्ट किया और कुछ नहीं किया। सो रिवीजन इज सो इम्पोर्टेंट, सो क्रूशियल। जितने टॉपर्स हैं और जिनका भी एग्जाम क्लियर हुआ है,
उन्होंने दो ही बातें बोली हैं, आइदर दे आर सॉल्विंग लेस पेपर और आइदर दे आर डूइंग लेस रिवीजन, जिसके चक्कर में उनका पिछले बार नहीं हुआ। एंड दिस टाइम दे आर एबल टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। व्हाई? दे आर इन ए पोजीशन टू स्ट्रक्चर their preparation in well mannered, and revision has been their most important component in that framework. So this is also the motivation why I have started this channel UPSC Revise, because revision is something जिसके बारे में कोई ज़्यादा बात नहीं करता, and I want to be vocal about it. This is revision is not a taboo कि भाई जिसके बारे में हमने बात ही नहीं करनी है। Revision is something जो भाई चार दीवारी के अंदर अपने घर में कॉपी खोल के, लैपटॉप खोल के, फोन टैब खोल के अपने साथ होनी है। No, रिवीजन इज समथिंग विच यू कैन डू इट टुगेदर। रिवीजन के बारे में बात होनी चाहिए, मोर एंड मोर स्ट्रैटेजीज एंड रिवीजन के रिलेटेड कंटेंट आना चाहिए मार्केट के अंदर, सो दैट इस रिवीजन के जो इस हवे को इजीली हम खत्म कर पाए। और रिवीजन एक ऐसी चीज, आई अंडरस्टैंड रिवीजन करते समय आप ब्रेन बिकम लथार्जिक, हमको समझ में नहीं आता है, ब्रेन बोलता है यार एक कंटेंट तो हमने पढ़ लिया है, वाई टू स्टडी द सेम कंटेंट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, वाई? मैं बताऊंगा आज वाई, और इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। तो दिस इज माई अप्रोच टू रिवीजन। लेट्स से आपने एक कंटेंट पढ़ा, ठीक है, दिस इज द पिक्चर, आपने जो कंटेंट पढ़ा दिस इज द पिक्चर, क्योंकि 80 to 90% कंटेंट होगा जो आपको एक बार में पढ़ के पूरा डाइजेस्ट नहीं होने वाला। इट इज ओनली 1 to 10% कंटेंट जो आप पूरा पढ़ते हैं और देन यू आर इन ए पोजीशन कि भाई पूरा डाइजेस्ट हो गया, पूरा समझ में आ गया। यू आस्क मी क्वेश्चन इनटू एनी डायरेक्शन, I am in a position to answer those questions. But in 80 to 90% of the cases आपको उतना कंटेंट रिमेंबर नहीं होता जब आप एक बार में एक कंटेंट पढ़ते हैं। दिस इज ए सिनेरियो, देयर विल बी सम गैप्स हियर एंड देयर जो आपको फिल करने रहेंगे, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट दिस कि भाई मैंने एक बार पढ़ा है, एक बार में मुझे इतना ही याद हुआ है, ये गैप्स जो हैं ये रह गए हैं मेरे कंटेंट के अंदर। एंड दिस इज द सिनेरियो जहां पे रिवीजन कम्स। आपने पढ़ा पहले, देन यू हैव टू रिवाइज, दिस इज योर फर्स्ट रिवीजन, यू हैव टू रिवाइज वन। और जब आप एक बार रिवाइज करोगे यू विल शिफ्ट फ्रॉम दिस पिक्चर टू दिस पिक्चर। ये जो गैप था ये फिल हो गया आपका यहां पे, ठीक है। दिस इज द गैप जो लास्ट टाइम जब पढ़ा था आपने, और रिवीजन वन के बाद दिस इज द सिनेरियो, दिस पिक्चर इज द सिनेरियो आफ्टर रिवीजन वन, कि जो आपका ये गैप है ये आपका यहाँ पे ये फिल हो गया। नाउ आपने कंटेंट कंज्यूम किया, आपने रिवीजन वन R1 किया, नाउ दिस इज देयर इज अ टाइम आपको R2 करना है, यू हैव टू रिवाइज अगेन। जब आप इसको अगेन रिवाइज करोगे, बिकॉज क्यों आपको रिवाइज करना है, बिकॉज देयर आर स्टिल गैप हियर एंड देयर, द पिक्चर इज स्टिल ब्लरी, पिक्चर अभी भी ब्लर है, देयर आर गैप्स, देयर आर लैक्यूनास इन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। तो उसको फिल करने के लिए आपने R2 किया, आपने फिर से रिवाइज किया। जब आप फिर से रिवाइज करोगे योर पिक्चर विल लुक समथिंग लाइक दिस। आपका एक सब टॉपिक, एक पार्ट कवर हो गया, आपका ये वाला पार्ट कवर हो गया, आपका ये वाला पार्ट कवर हो गया। आपने पढ़ाई किया, आपने कंटेंट कंज्यूम किया, आपने R1 किया, आपने R2 किया। नाउ you have to do R3 because you have to also cover up these gaps as well. You have to cover these gaps as well. So कभी भी एक बार पढ़ के हम पूरा कंटेंट नहीं रिकॉल कर सकते और रिकैपिटलाइज तो कर ही नहीं सकते जब हमारे सामने डिफरेंट डायरेक्शंस में, डिफरेंट डायमेंशंस में क्वेश्चंस आते हैं जो यूपीएससी पूछता है। यूपीएससी आपको आपके +2 या ग्रेजुएशन की तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस नहीं डालेगा हमेशा। यूपीएससी आपको हमेशा डिफरेंट डायमेंशंस में सोचने के लिए मजबूर करेगा, और 7 से 11 मिनट जो आपको मिलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वहां पे यू कैन नॉट रिकॉल ऑल दिस एस्पेक्ट्स, इसलिए यू नीड रिवीजन। और आजकल तो प्रीलिम्स में भी इतना डेप्थ, और 2025 प्रीलिम्स में इतना डेप्थ और इतने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इवन कि वहां पे भी यू डोंट हैव टाइम टू रिकॉल कि भाई इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्या था। यू हैव टू फर्स्ट रीड ऑल दी स्टेटमेंट। This time they have asked basically three statement in one question, और उस वहां से आपको पूछा है कि either one statement is correct or and it explains basically the I mean second and the third statement explain the one statement and both of them are correct, both of them are untrue or none of them are true. So these are the type of question UPSC is asking now. तो अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, आपकी डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपने रिवीजन अच्छे से नहीं किया है, रिवीजन कंपोनेंट को इग्नोर किया है, सो आपका सिलेक्शन भी उतना ही मुश्किल है। सो डोंट इग्नोर रिवीजन,
रिवीजन इज समथिंग विच इज सेक्रेट, इट हैज टू बी सेक्रेट और इट हैज बीन सेक्रेट जिन लोग का अभी तक यूपीएससी क्लियर हुआ है। रिवीजन को आपको उतना ही इंपॉर्टेंस देना है जितना आप GS1 GS2 हर एक सब्जेक्ट को देते हो, PYQs को देते हो, टेस्ट को देते हो, टेस्ट सीरीज को जितना आप इंपॉर्टेंस देते हो उतना ही इंपॉर्टेंस आपको आपके रिवीजन में देना है। सो दिस वीडियो इज बेसिकली ऑन द अप्रोच दैट यू हैव टू इनकलकेट इन योर थिंकिंग। बेसिकली हम सब ने वो पढ़ा होगा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, DPSPs आर समथिंग विच द लॉ मेकर्स हैव टू कीप इन माइंड बिफोर फॉर्मुलेटिंग अ लॉ। यही था ना DPSP। इसने पॉलिटी पढ़ा है, दिस इज समथिंग व्हाट DPSP इज ऑल अबाउट। उसके पहले ही DPSP के पहले ही आर्टिकल में, आर्टिकल 36 पहले ही उसके आर्टिकल में ये मेंशन है कि दिस इज समथिंग, दिस इज सो क्रूशियल दैट एवरी लॉ मेकर शुड कीप इन माइंड बिफोर फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसी। सो दिस फ्रेमवर्क एंड दिस स्ट्रक्चर इज सो सेक्रेड दैट अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट कर रहे हो, यू शुड कीप दिस स्ट्रक्चर इन माइंड बिफोर फॉर्मुलेटिंग दैट पॉलिसी। दिस स्ट्रक्चर इज सो सेक्रेड एंड दिस स्ट्रक्चर इज फॉलोड बाय एवरी टॉपर जिनका एग्जाम क्लियर हुआ है। सो आई होप I have given you some clarity, I have addressed your chaos and उसको मैं clarity तक लेके आया हूँ। अगर आपकी बत्ती जली है then my task and my work is over here। अगर आपकी बत्ती नहीं जली है and you are in the stage number 2 और अगर आप यहाँ पे लाइक करते हैं, एटलीस्ट आपकी जो थिंकिंग है वो एक डायरेक्शन में गई है, वो क्लियर हुई है। इस केओस थिंकिंग से समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, रैंडमली 5-6 लोगों की चीजें देख रहे हैं और उसको क्लब करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। आई होप मैं आपको इस केओस से इस क्लैरिटी के तरफ लेके आ पाया हूँ। बत्ती अगर जल गई है तो वेल एंड गुड, माई टास्क इज ओवर, यू आर गुड टू गो। अगर आप इस स्टेज में हैं, नाउ इट्स माई ड्यूटी कि आपको इस स्टेज से थर्ड एंड द फाइनल स्टेज में आपको मैं कैसे लेके आऊँ। सो स्टे विद मी, follow this channel on Telegram and together we will crack it. More videos on planning, strategy and how to approach this exam definitely आगे आती रहेंगी। And the whole purpose of this channel or my initiative is basically to focus on revision. I will be giving you in future lectures some revision boosters and scientifically backed some revision strategies and conceptual understanding. So how to get about with all these revision, because एग्जाम के 1 वीक पहले आपको किस तरीके से रिवीजन करनी है। जैसे आपने कोई कंटेंट कंज्यूम किया है उसके 3 दिन तक आपको किस तरीके से रिवीजन करनी है, आपने इसके बाद रिवीजन कर रही है, देन व्हाट शुड बी योर गोल फॉर द नेक्स्ट 1 month to 3 months कि जो कंटेंट आपने कंज्यूम कर लिया है उसको आप रिवाइज किस तरीके से करेंगे। So in coming videos, I will be addressing all these doubts, all these questions, and if you have any query, please free to contact me at upscrevise@gmail.com. And if you want customized timetable and customized preparation strategy for you, you can also mail me. I will provide you a customized timetable and preparation strategy. आपसे पूछ के आपका क्या शेड्यूल है, आप किस तरीके से आपकी एक्टिविटी है, किस तरीके से आपको वर्क अराउंड करना है, आई विल बी मेलिंग यू योर पर्सनलाइज स्ट्रैटेजी। टाइम टेबल के लिए माय नेक्स्ट वीडियो विल बी फॉर द टाइम टेबल ओनली, कि बेसिकली हाउ टू अप्रोच द टाइम टेबल बनाना आपको है। प्लीज ट्रस्ट मी, ऑल दिस थिंग जो मैंने आपको आज इस वीडियो में बताया है, दिस इज the things which you have to keep in mind and you can follow this block approach before making your strategy. स्ट्रैटेजी बनानी आपको खुद है। आप किसी भी रैंडम पर्सन की स्ट्रैटेजी उठा के अगर आप उसको फॉलो करेंगे, इफ यू फॉलो एनी रैंडम पर्सन स्ट्रैटेजी, that would be not fruitful to you. What will be fruitful? Your own strategy, your own designed irregular strategy जो आपने खुद अपने लिए आपने डिजाइन की है। Remember, ब्यूटी ऑलवेज लाइज इन द इरेगुलरिटीज। जो परफेक्ट है हर चीज है, पहली बात तो कुछ चीज परफेक्ट नहीं होता। इफ यू कुछ चीज अगर आपको परफेक्ट लग रही है, इफ यू डिग डीपर इनटू इट, माइक्रोस्कोपिक लेवल में और अंदर जाएंगे, यू विल फाइंड द इरेगुलर शेप्स देयर आल्सो। सो नथिंग इज परफेक्ट हियर माय डियर। आपको अपनी इरेगुलर स्ट्रैटेजी बनानी है, बस आपका फ्रेमवर्क और स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग और सॉलिड होना चाहिए। दिस इज समथिंग विच आई वांटेड टू कन्वे इन दिस वीडियो।
and yes, it is doable and you can also do it. और नेक्स्ट वीडियो मैं टाइम टेबल के ऊपर लेके आऊँगा. आई विल एड्रेस द बेसिक इश्यूज ऑफ टाइम टेबल मेकिंग एंड आई विल टेल यू द ट्रिक्स ऑफ स्ट्रक्चर जिस बेसिस पे अगर आप टाइम टेबल बनाओगे यू विल स्टिक टू इट. द प्रॉब्लम इज कि हम टाइम टेबल बनाते हैं, ओवर एम्बिशियसली हम टाइम टेबल बनाते हैं और उसके बाद प्रॉब्लम क्या होती है, एक दिन फॉलो किया, 2 दिन फॉलो किया, 3 दिन फॉलो किया, मैक्सिमम 7 दिन, 1 वीक फॉलो किया, उसके बाद नेक्स्ट मंडे बस खत्म. यहाँ पे टाइम टेबल हम फाड़ते हैं, नोटिस बोर्ड पे जो भी बोर्ड आपके सामने लगे वहां से फाड़ते हैं, एक नया टाइम टेबल बनाते हैं. इससे क्या होता है, इससे हम प्रोकास्टिनेशन, इससे क्या होता है, बैकलॉग्स क्रिएट होते हैं, लैगिंग बिहाइंड द सिलेबस, कुछ भी चीज टाइमली कंप्लीशन नहीं हो पाता, अचीव ही नहीं कर पाते किसी भी चीज को टाइमली कैसे अचीव करें. तो दीस आर द लैक्यूनास जो टाइम टेबल से रिलेटेड है. आई विल एड्रेस दिस इन माई कमिंग वीडियो. सो अगर कोई भी आपको डाउट है, फॉलो मी ऑन दिस टेलीग्राम चैनल. अपडेट्स जो भी है रिलेटेड टू माई कंटेंट आई विल बी पोस्टिंग हेयर एज वेल. और कोई अगर आपको पर्सनलाइज टाइम टेबल और प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी चाहिए देन यू कैन कॉन्टैक्ट at upscrevise@gmail.com. Thank you so much for watching. See you in the next one.